Hello students, welcome to today's class. Today we will talk about close packing, or simply I say arrangement of the particles. Because we are dealing with the solids, and solid is made up of very small particles, and the shape of the particle is always spherical. Okay, कुछ बॉल जैसी सी shape होती है, and these atoms are supposed to touch each other. When these constituents or particles or spheres are supposed to touch with each other, they have some specific pattern. While they get attached, they have some pattern, and on the basis of in which pattern they are arranging themselves, we have different shape or different type of unit cells. Like when we discussed unit cell, we have told you that unit cell are basically of primitive or non-primitive. When it comes to non-primitive, it may be body centered, it may be face centered, it may be your end centered. So today we will talk about the arrangements in three-dimensional, how the particles arrange themselves to get FCC arrangement, to get BCC arrangement, or to get the simple cubic. So what we are talking about today is close packing. Close packing simply means arrangement of particles. Arrangement of particles, we have basically three types of arrangement here. First arrangement we will talk about is in 1D arrangement. 1D arrangement stands for only in one dimension, only along any one axis, either along the x axis or y axis or z axis. किसी भी एक ही डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट होगी, that will be a one dimensional. One dimensional, when it comes to the one dimensional arrangement, atoms has only one type of arrangement possible, and that is like this. This is one of the quotient which has spherical shape. This is second, this is third, this is fourth, and so. Because in the solids we consider that atoms touch with each other. Here you can see that constituents are touching with each other. Okay, so this is your one dimensional arrangement. In one dimensional arrangement, or in any of the arrangement, we have a very simple point or definition of coordination number. Coordination number. What does coordination number stands for? Coordination number simply means how many atoms are nearest neighbor of any given atom. We are using here a very simple term is nearest neighbor. देखें, because we live in society, और normally क्या होता है कि आपके घर की दीवार बाकी किसी दूसरे घर की दीवार से most of the time टच कर रही होती है, especially when it comes to the cities. आप सेक्टर में जाते हैं तो आपके घर की दीवार और आपके नेबर की जो दीवार होती है वो एक दूसरे को टच कर रही होती है. ठीक है. नाउ अब अगर मान लेते हैं आप जिस गली में रहते हैं, उस गली में 10 घर हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो 10 के 10 घर हमारे नेबर्स हैं. ठीक है. लेकिन सबसे क्लोज नेबर कौन सा होगा? हु विल बी द नियरेस्ट नेबर? आंसर इज कि जिसके घर की दीवार आपके घर की दीवार से टच करती है वो आपके सबसे क्लोज है. क्लोज मीन्स I don't mean emotionally or mentally. I just simply means those who are touching. ठीक है. जो जिसके बीच में, जिस नेबर और आपके बीच में डिस्टेंस सबसे कम होगी, that will be your nearest neighbor. यहाँ पर यही बात हम कह रहे हैं कि नियरेस्ट नेबर वो होगा जो किसी गिवन एटम को टच कर रहा होगा. ठीक है. सो I can say here coordination number means simply coordination number means number means
the atom under consideration, कि जिस एटम की मैं बात कर रहा हूं उस एटम को और दूसरे कितने एटम्स क्या करते हैं, टच करते हैं, वो हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एक एटम जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस एटम को मैं इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। दिस इज बेसिकली अ 1 मार्क क्वेश्चन इन CBSE, सो बी केयरफुल हियर। दिस इज द एटम आई वांट टू फाइंड आउट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अगर ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेरे पास, इसमें देखो कितने एटम्स टच करते हैं, 1 and 2। In one dimensional arrangement, two atoms are touching. If two atoms are touching, it means coordination number is 2. Coordination number is 2। यानी कि कोई भी गिवन एटम आपके पास होगा, जैसे यहाँ पर आई एम रिपीटिंग इट कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, डार्क वाला जो पार्टिकल है उसको कितने पार्टिकल सीधे सीधे टच करते हैं, ये और ये। आई एम सेइंग कि हाउ मेनी एटम्स आर टचिंग द एटम अंडर कंसिडरेशन, कि मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इसको तो सिर्फ यही दो टच करते हैं। अगर मैं इसको कंसिडर करता तो एक तो ये टच करता और दूसरा ये डार्क वाला टच करता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी आप निकालेंगे, बट यू विल टेक केयर अबाउट हाउ मेनी एटम्स आर टचिंग of any given element or of any given atom, that will be its coordination number. So this is the arrangement in one dimensional. When it comes to the arrangement in two dimension, means 2D arrangement, how we get to the 2D after joining 1D layers, we get 2D arrangement। ठीक है, एक जो वन डायमेंशनल की अरेंजमेंट्स है, यानी कि इस अरेंजमेंट को अगर मैं आपस में स्टैक करता जाऊं या चिपकाता रहूं या अरेंज करता रहूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट आ जाएगी। यानी कि 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट को बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट की। नाउ वी हैव मोर देन वन पैटर्न हियर। देखिए क्या होता है कि 2 डायमेंशन में अगेन फर्दर यू हैव 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल। 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट हाउ, कि दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट लेयर, कि मैंने 1D लेयर पहले ली, ठीक है, अब इसके साथ मैं दूसरी एक 1D लेयर अटैच करना चाहता हूं, देन आई विल हैव 2 ऑप्शंस। कि पहला कि एटम के नीचे एटम हम रख रहे हैं लाइक दिस। ध्यान देना कि यहाँ पर एटम्स एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे लाइक दिस। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं दिस इज सेंटर ऑफ दीज एटम्स, जिनको मैं सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यू विल सी के ऑल दीज सेंटर्स आर इन द सेम लाइन। ठीक है, आप किसी का भी उठा के देखेंगे तो वो क्या है कि सेम लाइन में आएंगी। एट द सेम टाइम के एक लेयर और दूसरी लेयर के सेंटर भी होंगे, एक लाइन में होंगे। ठीक है, मींस ऑल द सेंटर्स आर अरेंज्ड, ऑल द एटम्स आर aligned horizontally as well as vertically, कि दोनों तरीके से वो क्या है, अरेंज है। जब दोनों तरीके से अरेंज होता है तो व्हाट हैपन्स इज कि यहाँ पर कुछ स्पेस ऐसा है जो खाली बच जाता है। जैसे यहाँ पर ये देखें कि ये जो स्पेस होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेस, जिसको मैं डार्क करके दिखा
मुझे क्या, अच्छा इस अरेंजमेंट का नाम क्या होगा? इस अरेंजमेंट का नाम होगा, दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कि हम इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। व्हाई? लेट्स पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर। व्हाई डू वी कॉल इट एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि आप कोई भी एक एटम कंसीडर कर लीजिए। मान लेते हैं कि मैंने ये एटम कंसीडर किया, मैं फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ कि एटम अंडर कंसीडरेशन इज डार्क। कि मैंने ये इसको क्या किया, डार्क किया। व्हेन यू डार्क इट, व्हाट हैपेंस इज कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कैसे? देखें इसमें कौन कौन से एटम्स टच कर रहे हैं। एक तो ये एटम है जो टच कर रहे हैं, दूसरा एटम ये है जो टच कर रहे हैं, थर्ड दिस वन एंड फोर्थ दिस वन। यू कैन सी अगर मैं इन चारों को मिलाऊं, इफ यू जॉइन ऑल द सेंटर्स, व्हाट यू गेट इज स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। व्हेन यू जॉइन ऑल द सेंटर्स, when you join all the centers, we get a square। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया, इसलिए हम इस टाइप की अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे अरेंजमेंट पर। अब जो दूसरा अरेंजमेंट है उसमें क्या पॉसिबल था, लेट्स चेक इट आउट। कि हमारे पास दिस इज 1d लेयर, अब इसमें देखें यहाँ पर एक बीच में खाली स्पेस बन रहा है, यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं अपने एक एटम को यहाँ पर ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस। यानी कि ये जो आपके पास स्पेस बच रहा है, आप इसके अंदर एटम्स को जब अरेंज करेंगे, दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर आप कोई भी एक एटम कंसिडर कर लीजिए। लेट मी कंसिडर दिस एटम। ठीक है, मैं फिर से जो एटम कंसिडर कर रहा हूँ उसको क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। When you dark this atom, so let's find out the coordination number। coordination number find out करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से एटम्स इसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब देखें, दो तो ये एटम्स टच करते हैं, फर्स्ट सेकेंड, ऐसे ही एक एटम ये टच करता है यहाँ और एक एटम ये टच करता है, 4 हो गए। इसके बाद दो एटम्स ये टच करते हैं। इफ आई जॉइन दीज सेंटर्स, व्हाट आई गेट इज, व्हाट आई गेट इज हेक्सागन। यहाँ पर क्या बन रहा था, स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पर क्या है, हेक्सागन। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज हेक्सागोनल अरेंजमेंट or hexagonal close packing. What is its coordination number? Coordination number is 6. I am writing coordination number by the help of C dot N. C stands for coordination and N stands for number. Coordination number is 6. When coordination number is 6, so let me check सबके सेंटर अलाइंड है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये जो सेंटर्स हैं ये ऐसे हॉरिजॉन्टली तो अलाइंड है, हॉरिजॉन्टली तो अलाइंड है। यहाँ पर भी आप सेंटर निकालेंगे हॉरिजॉन्टली तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वर्टिकली व्हेन इट कम्स टू द वर्टिकली, देखो इस सेंटर के नीचे क्या सेंटर बन रहा है, कोई नहीं बन रहा। इस सेंटर के नीचे क्या कोई सेंटर बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इनके सेंटर्स को निकालेंगे लाइक दिस, तो ये क्या आएंगे कि यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशंस पर आते आते एक दूसरे के साथ अलाइन करना शुरू कर देंगे। इफ आई से दिस इज लेयर ए, ठीक है, एंड दिस इज लेयर बी, अगेन दिस इज लेयर ए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, अगर आप इस स्पेस के अंदर एटम्स को अरेंज
आएगी वो पहली लेयर से अलाइनमेंट में नहीं आएगी, बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट अलाइंड, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टली अलाइंड है तो मैं उसको यहाँ पे नाम दिया ए, इसको भी हॉरिजॉन्टली अलाइन था क्योंकि अब दोनों के सेंटर्स अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, तो मैंने इसको नाम दिया बी। और जब आप इसके वॉइड्स में रखने जाओगे, जो थर्ड लेयर आएगी वो ए से मैच करती होगी, मींस हेक्सागोनल अरेंजमेंट इज अ ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। दिस इज योर ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। नाउ यहां पर अगर आप देखें तो इफ दिस इज लेयर ए, ये हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है और वर्टिकली भी अलाइंड है, मींस दिस इज लेयर ए, अगेन लेयर ए, दिस विल अगेन लेयर ए, मींस जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है वो कैसी है, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर। यानी कि यहाँ पर सारी की सारी लेयर्स कैसी आएंगी, बिल्कुल एक जैसी आएंगी, सेम आएगी। सो ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा कि टू डायमेंशन के अंदर, टू डायमेंशन में जो अरेंजमेंट है वो दो पॉसिबल है। कौन कौन सी पॉसिबल है, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कब आएगी, जब आप एटम के नीचे एटम, मतलब जहां पे इसका सेंटर है वहीं पर इसका सेंटर, जहां इसका सेंटर है वहां पर इसका सेंटर, इस हिसाब से अरेंज करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर आप बीच में जो स्पेस बनता है वहां पे रखते जाएंगे तो आपके पास क्या बन के आता है, हेक्सागन बन के आता है। इसके अंदर क्या बन के आया, एम्प्टी स्पेस, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल साइड। लेकिन एट द सेम टाइम देखो यहाँ पर भी क्या है, एम्प्टी स्पेस है, लाइक दिस इज द एम्प्टी स्पेस। This empty space this is also called as void या फिर interstitial site। कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो void कहें आप या फिर आप इसको कह सकते हैं interstitial site। लेकिन यहाँ पर जो interstitial site थी वो कुछ स्क्वायर से शेप की थी, है ना। देखो स्क्वायर सा ना, बस स्क्वायर को बीच में से उसने क्या कर रखा था, स्क्वीज कर रखा था, तो ये क्या है, स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर ये जो वॉइड है ये कैसा है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर वॉइड। ये ट्रायंगल जैसे सी शेप बनती है। देखो दोबारा से कि ये अगर आप देखते हैं तो ये भी क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल कितने हैं, दो टाइप के, टू टाइप ऑफ ट्रायंगल्स वी हैव, टू टाइप of triangles we have। कौन कौन से, one having apex upside and second is having apex downward। ठीक है, एक कौन सी है, अपवर्ड, कि भाई देखो इस ट्रायंगल का फेस का है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप बात करें इस ट्रायंगल की, इसका ट्रायंगल का है नीचे की तरफ। ऐसे ही इसका ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका फेस ऊपर की तरफ और इसका फेस नीचे की तरफ। तो यहाँ पर दो टाइप के वर्ड्स मेरे पास बनेंगे, शेप कैसी होगी, ट्रायंगुलर, लेकिन दो टाइप के वर्ड्स बनेंगे, एक जिनका फेस ऊपर की तरफ होगा, सेकंड जिनका फेस नीचे की तरफ होगा। अच्छा, इसमें से वॉइड का साइज किस में बड़ा है, स्क्वायर में बड़ा है। अगर वॉइड का साइज स्क्वायर में बड़ा है तो इट सिंपली मींस कि जब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग कराएंगे तो स्पेस बहुत ज्यादा खाली रहेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि हम बिकॉज साइज ऑफ वॉइड इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज लार्ज, कि वो कैसा है, बड़ा है, जिसकी वजह से दैट्स वाई पैकिंग एफिशिएंसी, दैट्स वाई पैकिंग एफिशिएंसी of square packing will be less than hexagonal close packing।
एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का वीडियो आप पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। ठीक है, अब शायद आप में से कईयों को यहाँ पर ये बात नहीं समझ आ रही होगी कि भाई कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ दो टाइप के वॉइड हैं। इसको हम एक और अल्टरनेट मेथड से समझते हैं, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, सो बिफोर दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, it will be easier for you to maintain your notes. So we have some tool here to show you two dimensional close packing. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सम ऑफ द बैंगल्स, एंड बैंगल्स को हम क्या मान के चलेंगे, एटम्स मान के चलेंगे। ठीक है, तो एटम्स क्या करते हैं, सॉलिड में एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं लाइक दिस, their one dimensional arrangement, right? This is your one dimensional arrangement. One dimensional arrangement में आप समझ सकते हैं कि one dimensional arrangement में you can understand कि कोई भी एटम आप कंसिडर करें, उस एटम में कितने दूसरे एटम्स टच करते हैं। आंसर इज 2। देखो, जैसे मैं इसको अगर मान के चलूं, दिस इज द पार्टिकल्स अंडर कंसिडरेशन, जहां पे मैंने कैप रखी है, इसको देखो सीधे सीधे कितने एटम्स टच करते हैं, 2। कौन कौन से, दिस इज 1 एंड दिस इज योर सेकंड। ठीक है, तो कितने एटम्स टच करते हैं, 2। सो वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस वन डायमेंशनल इनटू टू डायमेंशनल। जब टू डायमेंशन की बात आती है तो पहली तो अरेंजमेंट ये बनती है कि हम यहाँ पर एटम के नीचे एटम, मतलब दिस इज यू विल सी दिस कि ये मेरे पास दूसरी वन डायमेंशन की लेयर है। ठीक है, दिस इज द सेकंड लेयर। जब मैं सेकंड लेयर को अरेंज करने जाऊंगा तो पहला तरीका तो ये बनता है कि जी एटम के नीचे हमने एटम रख दिया। जब एटम के नीचे एटम रख दिया तो होगा ये। ठीक है, आंसर इज दिस वन, कि दिस विल हैपन। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके अगर हम करते हैं तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा ये। If all the bangles are of same size, then this will happen. ठीक है, अब इसमें समझो आप कि अगर आप किसी भी एक का सेंटर कंसिडर करें कि दिस इज द सेंटर। ठीक है, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, मतलब ये सब सेंटर क्या होंगे, एक लाइन में होने वाले हैं। ठीक है, आई होप यू कैन सी कि मैंने एक ब्लैक डॉट लगाई है सबके बीच में। ऐसे ही अगर आप इसके ठीक इसका सेंटर देखते हैं, वो ये आने वाला है, और इसका जो सेंटर देखेंगे वो ये आने वाला है। मतलब ये ऐसे भी अलाइंड है, बिल्कुल एक लाइन में है, और ये ऐसे भी क्या है, अलाइंड है, तो ये भी क्या है, एक ही लाइन में है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर कैसे, मैंने लेट किया कि ये जहां पे मैंने क्या रखी है, कैप रखी है, दिस इज द पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन। इसको टच कितने करते हैं, सीधा सीधा टच 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज माई 4। कि ये 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। दीज आर द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसको क्या करते हैं, टच करते हैं। अगर आप इनको मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन जाएगी। नाउ इट कम्स टू द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कि एक तो ये था कि आपने एटम के नीचे एटम रखा, लेकिन दूसरी जो अरेंजमेंट है वो देखें वो कैसे बनती है। मैं इनको डिस्ट्रॉय करता हूं। चलिए लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट। कि यहाँ पर हमने क्या किया, पहले तो एटम को यहाँ रखा था, एटम के नीचे रखा था। अब मैं एटम के नीचे नहीं रखता, 2 एटम्स के बीच में अरेंज करने वाला हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो 2 एटम्स के बीच में जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग आ जाएगी। यू कैन चेक इट आउट कि हल्की हल्की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हमारे लिए। एंड दिस वन अगेन। ठीक है, ये अरेंज हो गया। फिर से देखते हैं, फिर से इसको गैप में ले आए अगर हम, तो देखें क्या होगा। समथिंग लाइक दिस विल हैपन।
ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अरेंजमेंट आ जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कैसे, कि भाई हमने एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया कि दिस इज द पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन, इसको कितने दूसरे पार्टिकल्स टच करते हैं, देखें दो तो ऊपर हैं, 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज योर थर्ड जो सीधा सीधा टच करता है, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5 एंड दिस इज योर 6। अगर आप 6 को मैच करेंगे तो आपके पास जो शेप बनेगी, लुक एट दिस, जो शेप बनेगी वो कुछ ऐसे सी बनने वाली है। यू कैन इमेजिन, हमने पीछे बोर्ड पे भी ड्रॉ करके दिखाया, ये ऐसे कुछ शेप बनेगी और इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैथ्स में, हेक्सागन। तो दिस इज योर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें दो टाइप के वॉइड मुझे दिखाने हैं, ठीक है। जो टास्क है मेरे लिए सबसे बड़ा वो क्या है, दो टाइप के वॉइड दिखाने हैं, एक वो जिनका फेस ऊपर की तरफ है, एक वो जिनका फेस नीचे की तरफ है। देखो कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसकी शेप ट्राइंगल से मिलती जुलती है। अब यहाँ पर इसका फेस का ऊपर की तरफ है, यू कैन चेक इट्स फेस इज, इट्स एपेक्स इज अपवर्ड। ऐसे ही इसका भी फेस का है, ऊपर की तरफ है, इसका भी फेस ऊपर, इसका भी फेस ऊपर। मतलब जो ऊपर वाली साइड है ट्राइंगल बने हुए हैं, इन सब का एपेक्स का है ऊपर की तरफ। अगर इसका ऊपर की तरफ है बट एट द सेम टाइम ये जो वॉइड बन गया है ना, यहाँ पर भी एक वॉइड है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक वॉइड है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक वॉइड है, इनके फेस का है नीचे की तरफ है। फिर से समझते हैं कि ये देखो इस ट्राइंगल का फेस का है नीचे है, ऐसे यहाँ जो ट्राइंगल बनेगा वो भी कैसे नीचे, यहाँ पर जो ट्राइंगल बना, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये भी कहाँ नीचे, जबकि ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो कहाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है, दो, वन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी उसमें दो टाइप के वॉइड बनेंगे, एक वो जो ऊपर की तरफ फेस है जिनका, और दूसरा वो जिनका फेस कहाँ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इस 2 डायमेंशन में, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 आया, कि भाई 6 एटम्स टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब क्योंकि इसके वॉइड का साइज जो है छोटा है, ठीक है, वॉइड का साइज कैसा है, छोटा है। कैसे छोटा है उसको भी हम शो कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मैं ये देख रहा हूँ कि दिस यूज टू बी द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ एक बार, कि दिस इज माय स्क्वायर क्लोज पैकिंग जब एटम के नीचे एटम आया था, ठीक है, एटम के नीचे एटम आया था, मैंने उसमें से एक, देखो यहाँ पर ये वॉइड कितना बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वॉइड कैसा है, छोटा है। क्योंकि यहाँ पर वॉइड का साइज छोटा है तो इसका मतलब है यहाँ जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो कैसी होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉइड कैसा है, बड़ा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 3 डायमेंशन की तरफ। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम कहाँ जा रहे हैं, 3 डायमेंशन की तरफ। 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको, ये क्या है, 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन के ऊपर अगर मैं एक और लेयर रखता जाऊं, इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 डायमेंशन। क्योंकि देखो 3 डायमेंशन में क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। तो यहाँ पर लेंथ है आपके पास, दिस इज द लेंथ यू हैव, दिस इज द ब्रेथ यू हैव। लेकिन अगर आप इसके ऊपर एटम रख दोगे, इसके ऊपर एटम रख दोगे तो वो भी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हाइट अब हम मेंटेन करने जा रहे हैं। तो हाइट को जब हम मेंटेन करने जाते हैं तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। देखें, जो दूसरी लेयर है उसको मैं रेड बैंगल्स से क्या करने वाला हूँ, शो करने वाला हूँ। तो रेड बैंगल्स को रखने का या दूसरे पैकिंग को रखने का मेरे पास जो तरीका है वो ये है, या तो मैं क्या करूँ कि ये जो वॉइड है इसके ऊपर हम एटम्स रख दें। अगर मैं रेड बैंगल यहाँ रखता हूँ तो इसका मतलब है कि नीचे का ये जो वॉइड था वो क्या हो गया, कवर हो गया, फिल हो गया, अब यहाँ पर कोई वॉइड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सबको कवर करते जाओ, सबको ही क्या कर दो, कवर कर दो, तो देखो क्या होने वाला है, लुक एट दिस। आपके पास एक बड़ी ही अच्छी सी चीज बन के आएगी, एंड लेट्स चेक इट आउट, व्हाट इज दैट। यहाँ एटम्स एक दूसरे से टचिंग होते हैं, डोंट फॉरगेट, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास आ गया। अगर ये आपके पास अरेंजमेंट है तो देखो आपने क्या किया, ये स्क्वायर के उनको जो है वॉइड्स को ढकते गए, यहाँ एक था, यहाँ मुझे एक दिखाई दिया, यहाँ एक दिखाई दिया, यहाँ भी। और अगर आप दूसरी लेयर को भी देखें, जो दूसरी लेयर है वो कैसी है, वो भी अलाइंड है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी अलाइनमेंट है और वर्टिकल भी। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट में समझे तो शॉर्ट में ये है कि दूसरी
एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग मैंने नीचे ली, उसके ऊपर मैंने वॉइड्स को भरना शुरू किया सेकेंड लेयर से। अब जब थर्ड लेयर इसके ऊपर आती है तो देखें आपके पास दो ही जो है चांस बनते हैं कि अगर इसमें फिर से एक नया वॉइड आया, वो कौन सा आया, वो आया ये वाला, ये जो रेड वाला वॉइड आया। भाई नीचे देखो ये वाइट बैंगल है, वाइट बैंगल है मतलब नीचे एक बॉल रखी हुई है, उस बॉल के ऊपर 4 बॉल फिर से आई, तो नीचे तो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट आ गया, ऊपर से फिर से आपके पास क्या आ रही है, एक नया वॉइड बन के आ रहा है। अगर आप फिर से इस नए वॉइड को भरने गए तो आपके पास देखिए क्या होगा, समझ आया क्या होगा। फिर से दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है, कि ये 2 लेयर थी अभी तक, मैंने इसके ऊपर अब तीसरी लेयर रखी। जब तीसरी लेयर रखी और मैं वॉइड को भरने गया तो हुआ ये मेरे पास कि भाई कि आपके पास जो पहली लेयर का जो पार्टिकल था, देखो इसको साइड से देखते हैं, साइड से देखूं अगर मैं यहाँ पर कि ये मेरे पास क्या है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, ठीक है। उसके बाद रेड वाली क्या आई, सेकंड लेयर, और उसके बाद क्या आई, थर्ड लेयर। अब देखो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर है, मतलब जो अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर की थी वही अरेंजमेंट किसकी आएगी, थर्ड लेयर की भी आएगी। तो इस टाइप को अगर मैं लेयर 1 को क्या कहूँ, ए अरेंजमेंट, और इस रेड बेंगल की अरेंजमेंट को क्या कहूँ, रेड बेंगल की अरेंजमेंट को कहता हूँ मैं बी अरेंजमेंट, तो जो थर्ड लेयर आएगी वो फिर से कैसी अरेंजमेंट लिए हुए होगी, ए अरेंजमेंट। मींस कौन सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो गई, ए बी एंड ए। आई रिपीट, दिस इज माई ए, दिस इज बी, और फिर से क्या आएगी, दिस इज अगेन ए। तो दिस विल बी योर ए बी अरेंज। देखो होगा क्या, इसमें होगा ये कि आपके पास ये जो अरेंजमेंट बनी है, इस अरेंजमेंट का एक नाम होता है ऑल्सो नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब कईयों को नहीं समझ आ रहा होगा कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, बॉडी सेंटर्ड कैसे हो गई है, ठीक है। आई विल शो यू कि ये कैसे बॉडी सेंटर्ड हो गई है, ठीक है। तो दिस इज द अरेंजमेंट। हमने क्या किया, नीचे एक लेयर बनाई, उसके ऊपर दूसरी लेयर रखी, लेकिन जब दूसरी लेयर रखी तो वो कहाँ, गैप में, कहाँ रखी, गैप में। अब जब दूसरी लेयर बनी उसमें जो गैप आए उसके अंदर जब आप तीसरी लेयर रखोगे, गैप के ऊपर जब तीसरा पार्टिकल रखोगे तो वो तीसरा पार्टिकल और पहला पार्टिकल, सबसे नीचे की लेयर का पार्टिकल आपस में क्या होगा, कोसेंट्रिक होगा, मतलब दोनों के सेंटर एक ही लाइन पर होंगे। जब एक लाइन पे होंगे तो हम इसको क्या कह रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, लेट्स चेक इट आउट। क्या देखें, मैं फिर से क्या ले रहा हूँ, 4 एटम्स लिए मैंने, ठीक है। दीज आर द 4 एटम्स आई एम हैविंग। अब ये जो 4 एटम्स हैं मेरे पास, इनको मैंने अरेंज करके रखा। अब जो दूसरी लेयर थी वो कहाँ आई थी, वो इसके सेंटर पे आई थी। अब इसका जो नया वॉइड बन के आया वो फिर से थर्ड लेयर और पहली लेयर मैच कर गई थी, थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर क्या कर गई, मैच कर गई। अगर ये मैच कर गई तो देखें इसी अरेंजमेंट में क्या होगा, दिस विल बी द न्यू अरेंजमेंट नाउ। कि इस अरेंजमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी को तो हमने नाम दिया था बॉडी सेंटर क्यूबिक। भाई ये एक फेस हो गया क्यूब का, ऐसे ही नीचे एक फेस हो गया, बट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी एक ऐसा पार्टिकल है जो कॉर्नर के एटम्स को टच करे हुए है, ठीक है। तो दिस इज योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट पॉसिबल फ्रॉम द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। So let's continue. Before we continue, ask yourself what is the coordination number in body centered. Answer is going to be 8. कैसे, कि भाई ये जो बॉडी के सेंटर पे था ये नीचे वाले 4 एटम्स को टच करेगा, 1 2 3 एंड 4, 4 एटम्स को टच करेगा, और जो इसके ऊपर लेयर आएगी उसमें भी 4 एटम्स होंगे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, ठीक है। बट अब हम फिर से आते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपने जो पहले अरेंजमेंट की उसमें क्या किया, गैप्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट को रखा। अब मैं गैप्स में नहीं रखूंगा, अब मैं क्या रखूंगा, एटम के ऊपर एटम रखने वाला हूँ। भाई दो ही तरीके थे ना, या तो गैप में रखो, आइदर इन द गैप और एट द पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर। अगर मैं पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखता जाऊं तो देखो क्या होगा, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखने से यहाँ पर जो नीचे वाली लेयर है बिल्कुल सेम अरेंजमेंट आएगी ऊपर वाली लेयर में भी, ठीक है। अगर नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर सेम हो गई तो इसको हम क्या कहेंगे, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। इससे कौन सी शेप बनेगी, देखें इससे बनने वाली है सिंपल क्यूबिक,
this used to be the simple cubic के particles are present only and only at the corner. If particles are present only at the corner, then don't forget कि यहाँ पर भी एक void बनने वाला है और void का size बहुत बड़ा होने वाला है. ये जो void होगा ये बहुत बड़े size का होगा. क्यों? क्योंकि नीचे की layer में भी था, ऊपर की layer में भी था. So this is my cubical void also. I also call it as cubical void. ये NCERT में नहीं दिया हुआ, but still I'm telling you that this is your cubical void. तो square close packing से हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बनी? हमारे पास फर्दर 2 अरेंजमेंट बनी. एक जिससे हम सिंपल यूनिट सेल बना सकते हैं या दूसरा जिससे हम बॉडी सेंटर्ड बना सकते हैं. ठीक है. So what we are talking right now is by the use of this square close packing, 2 different type of arrangements are possible. 2 अलग-अलग arrangements की हम बात कर रहे हैं कि when second layer is put above first layer, we have 2 options. ठीक है. पहला ऑप्शन कि second layer is placed in voids of first layer. कि first layer का जो void होगा उसमें रखेंगे. या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि second layer is placed in voids of, sorry, not in the voids of, placed over the particles of फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखना है. जब फर्स्ट लेयर के ऊपर आप रखेंगे तो यहां से क्या बनेगा? सिंपल क्यूबिक. ठीक है. दिस विल गिव यू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. लेकिन अगर आप इसको देंगे देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज फॉर्म. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जब आप बनाएंगे तो देखें आपके पास क्या होगा कि ये एक पहली लेयर थी, गैप में रखना ना. सॉरी, हमें यहाँ स्क्वायर लेके चलना है. स्क्वायर के ऊपर रखेंगे हम. सो दिस इज द फर्स्ट स्क्वायर. ये पहली लेयर आ गई. इस लेयर को मैं नाम क्या दे रहा हूँ? ए लेयर. अब इसका ये जो वॉइड है इसके ऊपर मैंने पार्टिकल रखा, रेड बैंगल. याद रखते रहना कि दिस इज योर रेड बैंगल. जब आप इसके ऊपर पार्टिकल को रखेंगे तो क्या होगा? यू विल ऑब्जर्व कि दिस इज नॉट अलाइंड. ठीक है. अब दिस इज माय सेकंड लेयर और इस डार्क वाले लेयर को मैं नाम क्या दे रहा हूँ? बी. अब इसके जो वॉइड्स आएंगे, ठीक है, सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर इन द वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर. ठीक है. तो फिर से आपके पास क्या आएगी? फिर से यहाँ पर इसके ऊपर जब आप रखने जाएंगे तो फिर से एटम के ऊपर एटम आ जाएगा. यानी कि third layer is exactly above to the layer first. ठीक है. तो इस हिसाब से मैं थर्ड लेयर को यहाँ पर किससे शो कर रहा हूँ? डॉटेड से. ठीक है. वैसे तो एटम के नीचे अगर एटम के ठीक ऊपर एटम आता है तो वो दिखाई नहीं देगा, बट क्योंकि हमें शो करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? मैं उसका डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दिस इज माय थर्ड लेयर. तो यहाँ पर क्या बन के आएगी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. और यहाँ पर क्या बन के आएगी? सिंपल यूनिट सेल. मतलब जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग को मैं 3D में कन्वर्ट करने चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही तरीके बनते हैं. या तो एटम के ऊपर एटम रख दो या फिर उसके वॉइड्स में रख दो. अगर वॉइड्स में रखा
तो फिर आप क्या बना के लेके आएंगे, बॉडी सेंटर्ड। और अगर आप उसको जो है एटम के ऊपर एटम रखते हैं तो क्या बन के आएगा, सिंपल क्यूबिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। Now we will talk about the three-dimensional arrangement